السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گندا انڈا۔ میرے آج کے مہمان عمر جاوید صاحب اساتذہ میں سے ایک ہیں، میرے دوستوں میں بھی شمار ہوتا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ عمر جاوید ایک محقق ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز میں نیوز بیسڈ شوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تحقیق ان کا پروفیشن ہی نہیں بلکہ پیشن بھی ہے۔ جنوبی ایشیا کی سیاست ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ گولڈ میڈلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں۔ گمبھیر لب و لہجہ، گرد و پیش سے بے نیازی اور پوٹوہاری والی سنجیدگی مزاج میں نمایاں ہے۔ روشن خیالی، جمہوریت، انسانی حقوق، اظہار آزادی رائے پر مروجہ نظریات کو آزادانہ نظام کے کھوکھلے نعرے سمجھتے ہیں۔ عمر بھائی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اتنا ثقیل انٹروڈکشن میں نے آج تک کسی کا نہیں کروایا۔ نہیں، آپ کی محبت ہے حسیب بھائی، آپ بھائی ہیں، دوست ہیں، بلکہ یہاں ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ کافی عرصے سے میں اور حسیب بھائی مشترکہ طور پر بھی جوائنٹ بھی کام کرتے رہے ہیں، مشترکہ پروگرام بھی کام کرتے رہے ہیں۔ عمر بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے، انٹرویوز ہو صاحب کو پتہ ہی ہے، آپ میرے انٹرویوز دیکھتے رہتے ہیں۔ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پہلا سیاستدان ہے جس نے اڈا لگایا اور اس کے بعد الیکشنز میں باقاعدہ ووٹ لے کے سب کی امیدوں کے برعکس اس بندے نے اپنا رزلٹ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے؟ دیکھیں، کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں یہ ایک نئی ہسٹری جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہوتا کیا تھا کہ جو پولیٹیشین بھی ٹکراتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے تو الیکشن میں ایٹ لیسٹ اس کی پارٹی زیادہ سیٹیں نہیں لے پاتی تھی، چاہے وہ بینظیر بھٹو ہوں 1990 میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آئی جی آئی کو جتوایا گیا، پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا۔ آپ 1993 دیکھ لیں جب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے، نواز شریف نے سرے عام کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، نتیجہ نواز شریف الیکشن میں ہارے 93 میں، 97 میں بینظیر ہاری، 2002 میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنے والی نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ ہاری۔ 8 آپ دیکھ لیں سیٹنگ کی ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ جیت کر آ گئی۔ آپ 2013 دیکھیں نواز شریف کی اور جنرل کیانی کی سیٹنگ تھی آپس میں، نون لیگ سیٹ ہو چکی تھی، نواز شریف جیت کر آ گئے۔ 18 میں ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ذرا ٹائٹ کر رہی تھی نون لیگ کو، نون لیگ ہاری۔ یہ پہلی مرتبہ تھا، اور اس میں سی بھائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں جتنی یعنی ہم جس عمر کے جس حصے میں اتنے عرصے سے جو لوگ الیکشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں، انتخابی حرکیات کے ماہرین ہیں، الیکٹرل پالیٹکس کے ماہرین ہیں، ان کے بھی یہ سرویز تھے، تجزیے تھے کہ پی ٹی آئی بمشکل 40-50 سیٹیں قومی اسمبلی کی 266 میں سے بمشکل لے پائے گی، نہ اس کے پاس نشان ہے، نہ انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ لیکن قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بن جانا یہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ بھی ہے، اور سمجھنے والوں کو بہت کچھ سمجھ بھی جانا چاہیے کہ پاکستان اب جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو کلاسز ہوتی تھی وہاں سے باہر نکل رہا ہے۔ جو مڈل کلاس کی اٹھان ہے نا، اب جب میں مڈل کلاس کہہ رہا ہوں تو ویورز کی آسانی کے لیے مڈل کلاس سے مراد یہ ایسے مرد عورتیں، ایسے لڑکے لڑکیاں، ایسی یوتھ جو جابز کر رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے دم پر، آئی ٹی سیکٹر میں، میڈیا میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جابز کر رہی ہیں، اپنی ایجوکیشن سکلز کی بنیاد پر وہ نوکریاں کر رہے ہیں۔ ان کی تھاٹ جو ہے، تھاٹ پروسیس ہے، وہ چیلنجنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈائنسٹک جو پولیٹکس ہے اس کو دنیا بھر میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جو موروثیت کی سیاست ہے اس کو دنیا بھر میں یعنی یہ کہنا کہ یار وہ اس کا بیٹا ہے پرائم منسٹر کا تو وہ چیف منسٹر بن جائے گا، وہ چونکہ اس کا باپ چونکہ صدر تھا تو وہ گورنر کے لیے ایلیجیبل ہے، یہ ڈائنسٹی چیلنج ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی نون لیگ کے اندر جس طرح میاں خاندان کی ڈائنسٹی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو زین زرداری کی ڈائنسٹی ہے، اس کو یہ والی جو مڈل کلاس ہے جو اپنی نوکری کے لیے اسٹیٹ کی منت نہیں ہے پرانے زمانے کی طرح، یا اسٹیٹ کے دم پر کاروبار نہیں کر رہی، جو اپنی ایجوکیشن سکلز کی بنیاد پر پرائیویٹ سیکٹر میں، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر رہی ہے، اپنے دم پر جو ہے وہ اپنی سکلز کے دم پر کما رہی ہے، جاب کر رہی ہے، یہ وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہے یار یہ مریم نواز کون، یہ کیا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی یا حمزہ شہباز کے بیٹے یا بلاول ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے، یہ وہ ڈائنسٹک پالیٹکس ہے جو چیلنج ہو رہی ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ عوام نے اپنا غصہ ووٹ کے ذریعے نکالا ہے؟ غصے کا بھی اس میں ایک فیکٹر تھا، غصے سے بڑھ کر میں کہوں گا جو ہمدردی کا ایک جو ہے وہ فیکٹر تھا۔ آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جو نون لیگ کے کئی بڑے
पुराने सियासतदान हारे, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात तस्लीम की है कि यार इलेक्शन से पहले एक हफ्ते में इमरान खान को जिस तरह 3 सजाएं दी गई, ये इद्दत केस में सजा दे दो, तोशा खाना में साइफर में सजा दे दो, 14 घंटे की समातों के दौरान जिस तरह सजा दी गई है, जिस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आम इलेक्शन में किसी बड़ी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, उसके बावजूद आप देखें हसीब भाई, आप यकीन करें मेरे से आते जाते आम बंदे लोग पूछते थे कि उमर भाई ये बताइए सलके से पीटीआई का निशान बुरश वाला है, किताब वाला है, लैपटॉप वाला है, चूजे वाला है, मुर्गी वाला है, लैपटॉप वाला है, चिमटे वाला है, कौन सा है? हमने उसको जाकर वोट देना है। और लोगों ने आपके सामने देखें ऐसे निशानों पर जाकर जो है वो वोटिंग की। अच्छा, वोटर ने तो वाकई बहुत हैरान किया है उमर भाई, वो बात जो अभी तक किसी एंकर पर्सन ने या किसी तजिया निगार ने नहीं की, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि मेरे लीडर, बेसिकली मैं पीटीआई का सपोर्टर भी हूँ, मैं नून लीग का सपोर्टर भी हूँ, लेकिन इमरान खान साहब उनके साथ बेसिकली हुआ क्या? देखिए, इंटरनेशनल हवाले से हसीब भाई होता ये है कि जो भी पॉलिटिक्स होती है ना, उस पॉलिटिक्स के कुछ ना कुछ इंटरनेशनल ट्रेंड्स लाजमी होते हैं, यानी बैनुल-अक़वामी रुझान, यानी ऐसे ट्रेंड्स जो दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री में चल रहे होते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, 1970s में सोशलिज्म का ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, भुट्टो सोशलिस्ट, इंडिया में इंदिरा गांधी सोशलिस्ट, बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान सोशलिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अरब ममालिक के अंदर जमाल नासिर का आप उभार देख लें, गजाफी का उभार देख लें, इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी का आप उभार देख लें, ये साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के अंदर सुकारनो का आप उभार देख लें। ये मैं अभी सिर्फ सोशलिस्ट लीडर्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कम्युनिस्ट लीडर्स नहीं, सर चाइना कम्युनिस्ट था, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था, यानी जहाँ डेमोक्रेसी जमहूरियत थी, इंटरनेशनल ट्रेंड था सोशलिज्म वाला, रोटी कपड़ा मकान और सारा ये छीन लो, सरमायादारी, नेशनलाइजेशन। आज मैं और आप जिस इंटरनेशनल माहौल में बैठे हैं ना, इसके लिए एक टर्म कॉइन की है, सियासियात के माहिरीन ने एक टर्म दी है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, यानी पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स। पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेंड है। अब ये पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स है क्या आसान अल्फाज में? अब देखिए, जिस तरह अमेरिका में ट्रम्प जिस तरीके से लीडर बना है, जिस तरीके से इंग्लैंड में कुछ अर्सा पहले बोरिस जॉनसन आया है, जिस तरीके से इंडिया में मोदी है, जिस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान का उभार हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद है, जिस तरीके से साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर तरीके चली हैं, ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पुरानी पॉलिटिक्स को चैलेंज करती है। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को, ट्रेडिशनल मीडिया को, अदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, उनको चैलेंज करता है। और पॉपुलिज्म अपने अंदर हर तरह के स्लोगन्स लेता है। आपको चाहे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी हो, इमरान खान की पीटीआई हो, मोदी की बीजेपी हो, इनके अंदर, इनके स्लोगन्स के अंदर आपको सोशलिज्म भी नजर आता है कि दौलत वापस ले लेंगे, छीन लेंगे, लूट मार खत्म कर देंगे। आपको इसके अंदर नेशनलिज्म भी नजर आता है, नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, कौमी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आपको इसके अंदर रिलीजियस एंगल भी नजर आता है, सेंटिमेंट्स भी नजर आते हैं। आपको इसके अंदर प्रोग्रेसिव नारे भी नजर आते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ख्वातीन को भी राइट्स होने चाहिए। आपको फिर इसके अंदर ट्रेडिशनलिज्म भी कहीं ना कहीं नजर आता है, आपको इसके अंदर मॉडर्निज्म भी नजर आता है। यानी ये एक तरह की ऐसी, आप इसको एक हांडी कह लें कि जिसमें हर तरह की चीज होती है। लोग यही तो हैरान है कि यार ट्रम्प जैसा बंदा अमेरिका का सदर बन गया, क्यों? ट्रम्प चैलेंज करता है वहां की पुरानी पॉलिटिक्स को, पुराने पॉलिटिशियंस को, पुरानी डायनेस्टीज को, पुराने बिजनेस को, पुरानी एलीट को, पुराने मीडिया को, वो चैलेंज करता है। तो एक आम अमेरिकी अपने साथ उसको रिलेट करता है। तो अब यहाँ इमरान खान पर आ जाइए। इमरान खान ने जिस तरीके से पुरानी पॉलिटिक्स को वो कर पाए नहीं कर पाए बात दूसरी है, 2018 से 22 तक वो कर पाए नहीं कर पाए बात, ये भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये हमारा अगला सवाल होगा। अगला सवाल, ठीक है। लेकिन उन्होंने एटलीस्ट अपने जलसे जुलूस और नारों के जरिए इन चीजों को चैलेंज किया, डायनेस्टी को चैलेंज किया, मोर्सियत को चैलेंज किया। बहुत अच्छी बात। अवाम को जब एक बंदा, आप खुद सोचें सीप भाई, आप भी इधर रहते हैं, जब लोग इधर अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से उनकी सैलरी बाद में आती है, टैक्स पहले कटता है, ऐसे ही है। ऐसे ही जब वो ये देखते हैं यार कि ये प्राइम मिनिस्टर के बेटे बाहर इंग्लैंड में कारोबार कर रहे हैं अरबों रुपए के, इनके बाहर अपार्टमेंट्स हैं, इनके पास कौन सी ऐसी जो है वो गिदर सिंगी आ गई है कि ये ऐसा अरबपति बने हुए हैं, और हम लोग यहाँ पर जो है वो जॉब्स कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिल भर रहे हैं, हेल्थ का इश्यू हो जाए तो हमारा खर्चा है, एजुकेशन बच्चों को आपने अगर अच्छी तालीम देनी है तो आपको खुद करना है। लेकिन ये एलीट क्रीम खाती है सारी, और ये
कोई किसी का स्टेक इंग्लैंड में है, किसी का अमेरिका में है, स्विस अकाउंट्स हैं, बिल्कुल जी, ये ओपन मोहल्लात है हर जगह पे। अभी जो सदर जरदारी बन रहे हैं, अब इनके बारे में कौन नहीं जानता, जी जी। स्विस अकाउंट्स के बारे में, मियां फैमिली के बारे में इंग्लैंड के अंदर। तो ये जो नई मिडिल क्लास है ना, इसको ये चीज हजम नहीं मिडिल और एलीट दोनों ही कह लेते हैं, क्योंकि उसको भी इमरान खान ने यकसा ग्रूम किया। अलीट का फिर सेगमेंट, क्योंकि अलीट के कुछ सेगमेंट्स तो फिर नून लीग के पास भी है ना, हाँ। जो पुराना इंडस्ट्रियलिस्ट जी, जी, है, जी, जो जी। ताजर है पुराना, जी, जी। या पीपल्स पार्टी के अंदर जो अंदरून सिंध में फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, बिल्कुल। वो जो हाँ अलीट का कुछ सेगमेंट आप कह सकते हैं। खास तौर पर अगर मैं कहूँ जो नए वकला हमारे सामने आए, जी, 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 जी। पीटीआई के अंदर नए बहुत वकला आए जी। हैं, इनको हम कह सकते हैं कि इनका इजहारी सूरत में जो है वो होया सामने। अच्छा चलिए, अब हल्का सा मैं कन्वर्सेशन को टर्न करता हूँ। आप ये समझते हैं कि भुट्टो को अमेरिका ने फांसी दिलवाई थी क्योंकि वो इस्लामी ब्लॉग बनाने वाले थे? नहीं, इस चीज से मैं एग्री नहीं करता कि वो इस्लामी ब्लॉग बनाने वाले थे तो अमेरिका ने सजा दे दी, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ एक बड़ी मिथ है। जो उस जमाने का इस्लामी ब्लॉग बन रहा था, OIC की सूरत में आपका इशारा वो लाहौर कॉन्फ्रेंस की तरफ है जी। आप देखिए, असल में वो अमेरिका की भी जरूरत था, क्योंकि वो ब्लॉक शाह फैसल और इधर भुट्टो और कजाफी ये असल में प्रो सोवियत नहीं थे। यानी अमेरिका को एक चीज नजर आ रही थी कि जो उसका उस वक्त का सबसे बड़ा मुखालिफ USSR रशिया था, उसके मुकाबले में एक तीसरा ब्लॉक इमर्ज हो रहा है OIC का, मुसलमान मुल्कों का, तो होने दो, ये ब्लॉक हमें क्या करेगा, एंटीथीसिस रहेगा। भुट्टो को जो सजाए मौत हुई उसकी वजूहात दूसरी थी। वो आप कह सकते हैं एटॉमिक प्रोग्राम, वो आप कह सकते हैं अमेरिका की हर बात टोना करना, अमेरिका की लाइन ना लेना। अमेरिका हिला हुआ था यहाँ पर अयूब खान गिया खान पे, जो एक कॉल के जरिए जो चाहते थे अयूब खान यहाँ जासूसी के अड्डे देते रहे। U2 13 कराया 1962 में रशिया ने इधर पेशावर में कि आप जासूसी करवा रहे हैं बुदाबीर के इलाके में सारा, वो हिले हुए थे गिया खान के कि जो एक कॉल पर निक्सन को बुलाकर चाइना के साथ मामला तय करवाने और सारा। अब भुट्टो साहब इस तरह के नहीं थे। भुट्टो की अपनी जो उनकी तहरीरें हैं, भुट्टो की जो अपनी किताबें हैं, अपनी सोच है, वो एंटी इंपीरियलिस्ट थी। वो कहती थी क्यों पाकिस्तान किसी ताकत का मोहरा बन कर रहे। ये वो थॉट थी जिसमें अमेरिका ने फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। फांसी होती है तो होने दो, लेकिन ये एक मिथ के जी OIC और मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा कर रहे थे तो होगी, क्योंकि वो मुसलमान शाह फैसल प्रो अमेरिकन थे। सही कहा जाता ना शाह फैसल वो प्रो अमेरिकन एंटी सोवियत थे। शाह फैसल बहुत सख्त एंटी सोवियत थे, एंटी सोशलिस्ट थे। बिल्कुल ठीक। ये तो ये एक मिथ है भुट्टो साहब के बारे में। ये बात की चूंकि वो लाइन टोनी पाकिस्तान को मोरे के तौर पर नहीं चलाना चाह रहे थे अमेरिका के, तो ये बात अमेरिका को जारी बात है इस तरह हजम नहीं हो रही थी। और इस वाले से तो जारी बात है निक्सन के हेनरी किसिंजर के खास तौर पर, हेनरी किसिंजर की अपनी राइटिंग्स हम देखें, माई ईयर्स इन व्हाइट हाउस, तो उसमें भी वो ये बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में एक ज़माने में अयूब खान गिया खान वो हमारी हर बात जो है वो जो हम चाहते थे कर लेते थे। अब पाकिस्तान में भुट्टो जो है वो इस तरह नहीं करते। और हेनरी किसिंजर की बड़ी मशहूर धमकी थी भुट्टो को कि आपने अगर एटॉमिक प्रोग्राम ना रोका तो आपको इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। और वो बन गए, तो वो बन गए, बनकर रहेगा। लेकिन ये मुसलमान ममालिक वाली बात मिथ है, मिथ है, मिथ, बिल्कुल मिथ। अच्छा, मकबूलियत और बसीरत रखने के बावजूद भुट्टो नाकाम क्यों हुए? असल में भुट्टो सही तरीके से जो उनके अंदर एक छोटा सा फाशिस्ट बैठा हुआ था ना, उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अब हुआ क्या, सबसे बड़ी मिस्टेक जो भुट्टो से हुई, भुट्टो जैसी पावर में आते हैं और फिर मुल्क को नया आइन देते हैं 1973 में। अब भुट्टो के नेचुरल अलाई कौन होने चाहिए थे? नैप पार्टी वाले, नेशनल अवामी पार्टी, जो वली खान की, बाचा खान की, बलोच नेशनलिस्ट की, जो खुद लेफ्टिस्ट थी, सोशलिस्ट थी, एंटी इंपीरियलिस्ट पार्टी थी, उनके साथ भुट्टो का अलायंस होना चाहिए था। भुट्टो ने किया क्या, इस पार्टी को डैमेज करना शुरू कर दिया। अताउल्लाह मंगली गवर्नमेंट बलूचिस्तान में तोड़ दी, नैप पार्टी पर पाबंदी लगा दी, नेशनल अवामी पार्टी जो खुद एक प्रोग्रेसिव पार्टी थी, पीपल्स पार्टी की तरह सोशलिस्ट पार्टी थी, पाबंदी लगा दी। यानी वो अलाइज जो मुस्तकबिल में भुट्टो के साथ खड़े हो सकते थे उनको भुट्टो ने खुद डिसएसोसिएट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर जुल्फिकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी की सपोर्टर्स, पीपल्स पार्टी के वर्कर, जाले कमिटेड तो थे हर लिहाज से, लेकिन जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर मनज़म करने की जरूरत होती है, जैसे बड़ी मशहूर वो वाक़या है ना, कर्नल रफ़ी भी अपनी किताब में लिखते हैं, जो भुट्टो के बारे में उन्होंने लिखी, नुसरत भुट्टो जब भुट्टो से मिले जेल में, तो भुट्टो ने कहा नुसरत भुट्टो को, भाई अवाम क्यों नहीं बाहर आ रही, क्यों नहीं ये पार्टी मेरी बाहर आ रही ज़िया के खिलाफ और सारा।
नुसरत भुट्टो ने कहा आपने कोई ढांचा बनाया होता तो फिर लोग बाहर आते ना, आहा। आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन सही मानों में ग्रास रूट लेवल पर बनाई होती तो आप समझ जी, रहे, जी। पॉपुलरिटी थी, लोग थे, जाले थे, कमिटमेंट, लोगों ने खुद सोचियां की, कोड़े खाए, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी, तंजीम होनी चाहिए थी, वो नहीं। वो जो है वो लैक कर दी, सांचा नहीं बनाया। सांचा नहीं बनाया। और फिर प्लस आखिरी बात आपके सवाल की, भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत से सेन वाइसीज और अकलमंद लोगों को बाहर कर दिया। मिराज खान साहब आप देख लें, डॉक्टर मुबशर के साथ तो खैर उस तरह नहीं हुआ, लेकिन मिराज खान एग्जांपल है, ख्वाजा जे रहीम जिन्होंने भुट्टो को सोशलिज्म सिखाया, बताया, कि सिर्फ लेकर आए। भुट्टो ने ऐसे साथियों को भी जो है वो, खास तौर पर मिराज खान जैसे साथियों के साथ भी जो कुछ किया, तो ये चीजें ऐसी थी कि भुट्टो साहब को फिर इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। अच्छा, ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने 22 साल गुड पॉलिटिक्स की, लेकिन कामयाबी अहमद शुजा पाशा के आशीर्वाद से मिली। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिथ होती है। ये मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, ये वो पॉइंट्स हैं जो इल्जामात लगाए जाते हैं। जी 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 इल्जाम लगाया जाता है जी कि अहमद शुजा पाशा, बाद में ज़रूर इस्लाम का नाम भी लिया जाता है और पूरा प्रोजेक्ट कहा जाता है। बिल्कुल। आप देखें सिर्फ भाई, मैं आपके सामने 2-3 मिसालें पेश करता हूं। प्लीज। अगर किसी शख्स को पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर बनाना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, जी। मैं आपसे सादा सी मिसाल देता हूं। जब मुशर्रफ ने कू किया था अक्टूबर 99 का, मुशर्रफ ने कहा था किसी करप्ट लीडर से बात नहीं होगी, करप्शन को खत्म कर दूंगा। मुशर्रफ ने ईमानदार लीडर्स के साथ राब्ते शुरू किए थे। मुशर्रफ के इब्तदाई राब्ते उस वक्त के आर्काइव से देखा जा सकता है। अजमल खटक जैसे लोग, असगर खान जैसे लोग, बल्कि असगर खान के बेटे को तो मुशर्रफ ने मिनिस्टर ही बनाया। जी जी। खुद इमरान खान को मुशर्रफ ने शुरू में आगे बढ़ाने की कोशिश की, मकबूलियत दिलाने की कोशिश की, नहीं कर पाए। और फिर इमरान खान साहब अपनी किताब में बड़ा दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। ये जो आपका है ना, बहुत दिलचस्प लिखते हैं। प्लीज। वो लिखते हैं कि जब मुशर्रफ 2002 के इलेक्शन से पहले चौधरियों के साथ, चौधरी बरादरान जिन पर करप्शन के इल्जामात थे, जिन्होंने कर्जे खाए हुए थे, जी जी। उनको आगे करने के लिए काफ लीग बनाते हैं और इलेक्शन में पूरी धांधली का बंदोबस्त करते हैं। इमरान खान अपनी किताब पाकिस्तान माई पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं कि मैं मुशर्रफ से मिलने गया और मैंने मुशर्रफ को कहा कि यार ये आप इतने करप्ट लोगों को आगे कर रहे हैं, आप तो कहते थे करप्शन खत्म करनी है और सारा। मुशर्रफ के साथ उधर वो ISI के भी नुमाइंदे बैठे हुए थे, उहदेदार बैठे हुए थे, बाकी भी लोग थे। बड़ा दस जुमला कहा उन्होंने। कहा इमरान खान मैं क्या करूं अगर अवाम ही इनको वोट देती है तो, ओए, अगर अवाम इनको वोट देती है, ये खुद अवाम से वोट लेते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। यानी एस्टेब्लिशमेंट अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। इमरान खान के पीछे कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट जनाब 96 में हमीद गुल ने लॉन्च करवा दिया अपना। बिल्कुल ठीक है। 96 से लेकर अक्टूबर 2011 तक एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं इमरान खान को लीडर बना सकी। इमरान खान लीडर बनते हैं 30 अक्टूबर 2011 को, जब मिरर पाकिस्तान लाहौर में इमरान खान का जलसा होता है। जी, जी, अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ मिलती है, तारीख रकम हुई। और जिस मिडिल क्लास को मैंने कहा वो उनके साथ जुड़ती है आकर, बिल्कुल। उसके बाद ही कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। वाह। एस्टेब्लिशमेंट देखें, वो बड़ी मशहूर बात है कि 1 का 11 नहीं कर सकती, 1 का 3 कर सकती है, 11 का 15 कर सकती है, 15 का 1500 नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट ने अभी ये हालिया नतीजे आपके सामने है। लेकिन उसमें तो कहते हैं कि काफी ज्यादा हुआ है मामला। किसमें? हालिया नतीजे की बात की है, फॉर्म 45, फॉर्म 47। वो तो उसके बावजूद ज्यादा सीटें किसकी हैं? ठीक है। यानी अगर सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होता तो पीटीआई तो फिर 25-30 कहीं सीटों पर हमें नजर आ रही होती, लेकिन पीटीआई के पास कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें जी। तो इस तरह कभी नवाज शरीफ लीडर कब बने? नवाज शरीफ को लीडर कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। नवाज शरीफ लीडर बने 93 में, अप्रैल 93 में पीटीवी की मशहूर तकरीर के बाद, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा जब उन्होंने कहा, उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो लीडर बनते हैं और अवाम उन्हें एक्सेप्ट करती है। भुट्टो कब लीडर बने? सीधा जब टकराए, डैडी कहते थे अयूब खान को, जब उस अयूब खान से टकरा कर उसी अयूब खान की जेल में गए, उसके बाद भुट्टो लीडर बने। तो ये मिथ भी गलत होती है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहे उठाकर लीडर बना दे, खुद आपको क्राउड पुल करना होता है, अवाम में अपना मुकाम बनाना होता है। यानी कि जो इमरान खान साहब पे इल्जाम है कि उनको भी एस्टेब्लिशमेंट ही लाई, तो वो आधा इल्जाम है, पूरा इल्जाम नहीं। और ये आधी सच्चाई, आधी सच्चाई है। अगर आपके बकौल लीडर में कुछ होता है तो एस्टेब्लिशमेंट हेल्प करती है, अदरवाइज वो भी हेल्प नहीं तो कर सकती है। तो करती नहीं, तब ही एस्टेब्लिशमेंट हेल्प कर सकती है। पॉसिबिलिटी तब। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान माशी बहरान से कैसे निकलेगा या निकल भी सकेगा? देखिए, निकलने को तो निकल सकता है, कुछ भी मुमकिन होता है, लेकिन इसके लिए हमारी एलीट को बहुत ज़्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ है एलीट कैप्चर। वो तो फिर नहीं होंगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये है एलीट कैप्चर। ये एलीट कैप्चर क्या होता है? टैक्स एविजन करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना,
अपने लिए एलीट बेनिफिट्स लेना, अपने लिए मराद ज़्यादा लेना, आम आदमी पर बिजली, पेट्रोल, ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं उन पर टैक्सेशन कर देना। एलीट जो होती है, देखें अभी भी पाकिस्तान दुनिया में शायद अफ्रीका के 2-3 मुल्क या लैटिन अमेरिका के जहां अभी भी जागीरदारी निज़ाम है, बड़े जागीरदार पर टैक्स नहीं है, वो एग्रीकल्चर के नाम पर उस तरह टैक्स देते ही नहीं है। अभी भी आप देख लें जिस तरह के यहाँ पर वो प्रॉपर्टी टाइकून्स अचानक आए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ऐसे बिजनेसेस को फरोग दिया गया जिनका सीधा ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग के साथ था, जिनका सीधा ताल्लुक ब्लैक मनी के साथ था, जो मैशत डॉक्यूमेंटेड ना हो, डॉक्यूमेंटेशन से बाहर हो, ब्लैक मनी ज्यादा हो, तो इसके लिए तो बहुत सख्त रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। अफसोस इस चीज का है जिन्होंने रिफॉर्म्स करनी है उनके अपने बिजनेस इंग्लैंड में है या बाहर के मुल्कों में है, उनके अपने बेटे दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, जिनसे ये तोको करनी चाहिए कि यार वो यहाँ पर कुछ किसी किस्म का। तो जो दोस्त इमरान खान को लाए थे, जो इल्जाम लगाते हैं हम लोग, वो ये काम करवा नहीं सकते। देखिए इमरान खान खुद अपनी एक बहुत बड़ी गलती तस्लीम करते हैं, खुद बहुत बड़ी। वो ये कहते हैं कि 2018 में मुझे इतने कम मैंडेट के साथ, फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था। जहां आप MQM पर, GDA पर, काफ लीग पर, आज़ाद अरकान पर इन्हिसार कर कर हुकूमत में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी हुकूमत जिसमें आपके पास अपनी एक शरीयत भी नहीं है, इमरान खान खुद मान गए, खुद मानते हैं, और इमरान खान मानते हैं। इसी तरह 1988 में कई अच्छे वफादार लोगों ने बेनजीर भुट्टो को कहा था कि ना इस कमजोर मैंडेट के साथ आओ जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप बैसाखियों पर जो है वो चलते रहोगे। तो 2018 में असल में हुआ ये कि इमरान खान के पास भरपूर मैंडेट जो है वो नहीं आया या नहीं लेने दिया गया। ठीक है, अभी ये जो 2024 में हुआ है ये भी तो फ्रैक्चर्ड दर फ्रैक्चर्ड ये तो बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, ये तो टूंडा लूंजा मतलब जिसे कहते हैं ये तो वो है, ये तो बिल्कुल ऐसा मैंडेट है। और ये आप देखिएगा कि ये हुकूमत ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अभी तो हमें इनका रोमांस नजर आ रहा है, अभी तो हमें इनका रोमांस पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, MQM का, ये अभी नजर आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा अरसा चलना नहीं है क्योंकि ये भी एक फ्रैक्चर्ड है। क्योंकि फ्रैक्चर्ड का सबसे ज्यादा नुकसान होता क्या है कि आप, वही बात है कि आप अगर नेक नीति के साथ कोई माशी पॉलिसी बनाना भी चाहते हो, आप नेक नीति के साथ कुछ करना भी चाहते हो, तो आपको जरा सा नीचे थ्रेट आएगा, भाई ये किया हम आपकी हमायत से खिसक लेंगे। ये पार्लिमानी निजाम का बड़ा वीक पॉइंट है। दुनिया में पार्लिमानी सिस्टम का जो वीक पॉइंट माना जाता है वो ये माना जाता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इन्हिसार डिपेंडेंट होती हैं कई छोटी पार्टीज पर, तो वो अपना मंशूर इंप्लीमेंट नहीं करा सकती। मुझे ये बताइए मरियम बीबी के बारे में आपकी क्या राय है? आप काफ़ी देर क्योंकि चीज़ों को भांपते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आप समझते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट निकलेंगे अपनी पार्टी से? देखिए उनकी कैबिनेट देखकर तो बहुत मायूसी हुई है। मरियम ने जो आकर बातें की थी और सारा जिस तरह किया था, तो उसके बाद हमारे लिए पहली बात देखनी थी कि वो काबीना किस तरह की लेकर आते हैं। ठीक है, अब मरियम जिस तरह की कैबिनेट लेकर आई हैं, डायनेस्टी वाले पॉलिटिशियन, पुराने वजीर, सब वही पुराने लोग, बुजुर्गाने जो है ना से मतलब सियासत, जिनको पंजाब में कितने अरसे से मौका मिल रहा है, मतलब कि 97 से 99 तक शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर रहे, 2008 से 18 तक 10 साल चीफ मिनिस्टर पंजाब के रहे। उन लोगों की टीम के साथ आप सबसे बड़े सूबे, 12.5 करोड़ लोगों के सूबे को, अब देखें मरियम ने नारा लगाया था पंजाब को डिजिटल बनाने का। अब ये काबीना पंजाब को डिजिटल बनाएगी? आप मुझे बताएं। सब बना तो दिया उन्होंने, आटे की बोरी के फोटो नहीं लगाई। देखिए ये आटे की बोरियां बांट के भी ना कौम को इस तरह भिखारी साबित करना, कौम को साबित करना कि वो आटे की भूखी है। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे भाई, मैं यही कह रहा हूँ है ये 21वीं सदी, ये पुरानी सियासी जमातें नून लीग पीपल्स पार्टी 20वीं सदी में रह रही हैं। ये आज भी आटा चीनी दे दो यार, लोगों को नौकरियां दो यार, लोगों को जॉब्स दो, आटा वो खुद ले लेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो कमा सके। अच्छा ये जॉब्स वाली जो आपने बात की, आप समझते हैं हमारा लीडर इमरान खान ये कर पाए थे? देखिए इमरान ने मंशूर की हद तक, प्रोग्राम की हद तक तो ये बातें कही थी, लेकिन 2-3 बातें हमारे ज़हन में रही। एक तो ये कि इमरान जिस तरीके से मैंने कहा बहुत उनके पास मैंडेट ना होने के बराबर था, फिर प्लस ये कि इमरान खान को जिस तरह जनरल बाजवा चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो इमरान खान खुद भी कहते हैं, और फिर याद कीजिए सी भाई, बल्कि तब हम जॉइंट ही काम कर रहे थे, जॉइंट वेंचर पे थे जब कोविड आया था, जब कोरोना आया था। तो कोविड ने तो अमेरिका की मईशत को हिला कर रख दिया, वेस्ट को हिला कर रख दिया, चाइना को रख दिया। तो पाकिस्तान में इत्तेफाक से तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी कोविड हैंडलिंग अच्छी थी, लेकिन ये ऐसे वो 3-4 मैंने आपको बातें बताई जिन वजह से वो नहीं ये कर पाए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जहादी तंजीमों की हमारे सर पे हाथ रखने की जो काविश थी वो हमारे गले पड़ गई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है। ये हमें पॉलिसी नज़र आई है, ख़ास तौर पर जो 80s और 90s में
کشمیر کے اندر کیا گیا، یا اس سے پہلے 80s میں جس طریقے سے خاص طور پر جنرل ضیاء نے جو افغان جنگ تھی، جو افغان ڈائنامکس کے اندر ہو رہی تھی، یعنی جو افغانستان کی خلق اور پرچم پارٹی کی لڑائی تھی، اس پارٹی کی جنگ کو بچانے کے لیے سوویت یونین جب 1979 میں افغانستان آیا، اور جنرل ضیاء نے کس طرح اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس جنگ کو جہاد کا نام دے دیا. جو امریکی CIA، اسرائیل کی تنظیمیں اور سارا وہ ادھر لڑ رہی ہیں سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں، اس جنگ کو جنرل ضیاء نے اسلامک ایک جہاد کا رنگ دے دیا. اور پھر اس کے بعد جب افغان جنگ ختم ہوئی 89 کے بعد، تو جنرل ضیاء تو خیر چلے گئے تھے، ان کی باقیات نے کوشش کی کہ یہ چیز کشمیر اور اس طرف ہو جائے. تو اب آپ خود دیکھیے، یہ ایسی غلطی تھی جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پوسٹ 9/11 میں خود سدھارا. وہیں مشرف کو اعلان کرنا پڑا کہ اب کشمیر کے اندر ہم کسی جہادی تنظیم کو بیک نہیں کریں گے، سپورٹ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد حسیب بھائی آپ بھی تب یہاں پر سر دیکھ رہے ہوں گے، آج سے 7-8 سال پہلے کی بات کروں، جب TTP کے اٹیکس ہوتے تھے، جی آئے روز، یعنی پاکستان کی کسی نہ کسی جگہ پر حملہ ہوتا تھا. میں بات کروں 2008، 9، 10، 11، 12، 13، 14، لیکن 14 کو یہ اچھی بات ہے، فارچونیٹلی ہماری ایلیٹ جو ہے ایک پیج پر آئی. اس میں عمران خان، نواز شریف، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ، سارا جو پوائنٹس بنے کہ ان پوائنٹس کے تحت دہشت گردوں کو شکست دی جائے گی اور سارا. تو میرے خیال سے غلطی ایسی ہے جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یار ایسا غلط تھا. تو اگر ہم لوگ اس چیز میں ایک سیم پیج پہ تھے، تو آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، انکلوڈنگ عمران خان صاحب، ہم سب کو ایک ڈیل مار نہیں لینی چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں PTI کو یا عمران خان صاحب کو؟ کیونکہ آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس کافی کچھ پڑھا ہوا ہے. عمران خان کو سوٹ کرتا ہے ڈیل لینا؟ دیکھیں وہ ڈیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو عمران کوئی ایسی ڈیل لیتے ہیں کہ فیئر الیکشنز کو یقینی بنایا جائے، اس مرتبہ واقعی ہی نگران حکومت واقعی ہی نگران ہو، یہ پچھلے والی جو نگران گزرے وہ نہیں، ٹھیک ہے، اور الیکشن بالکل فیئر اینڈ فری طریقے سے، بالکل جس طرح وہ ہے نا 1970 کا پیمانہ، اس طریقے سے اگر ایسا پاسبل ہوگا تو پھر تو باقی ڈیل لینا. اگر دیکھیں ان کی ڈیل اگر جیل سے باہر نکلنے کی ہوئی، یا ان کی ڈیل ہوئی جی میری سزائیں جو ناجائز سزائیں دی گئی ہیں، جو غلط سزائیں دی گئی ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، تو پھر آپ خود سوچیں اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا. ابھی تو ہمیں ایسی ڈیل چاہیے نا، فیئر فری الیکشنز بالکل کیٹیگوریکل. اگر عمران خان صاحب جیل میں بند رہیں گے تو ان کی سیاست بالکل سائڈ پہ نہیں لگ جائے گی؟ فائدہ کیا؟ نہیں، اگر جیل میں بیٹھنے سے کسی کی سیاست موقوف ہوتی تو پاکستان میں پھر آج کئی پارٹیز نہ چل رہی ہوتی. جیل میں بیٹھنا تو چھوڑ کے آپ چھوڑیے، سزائے موت ہوگی ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ مرکز میں حکومت بنائی ہے. ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے. خان صاحب کا تو ایسا یہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ وہی بات آ گئی جو بہت بڑا ایک کوسچن مارک. بہت آپ نے اچھی بات کی، ویری انٹیلیجنٹ آپ نے بات کی کہ ان سیاسی جماعتوں کو وراثت بچا لیتی تھی. یہ نون لیگ کو نواز شریف جیل میں یا مریم جیل میں وراثت، مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تو بیگم کلثوم نواز جو ہے وہ تحریک لے کر باہر آ. ٹھیک ہے جی، ابھی ہمارے سامنے مریم آئی. عمران خان نے ابھی تک وہ وراثتی کارڈ کھیلا نہیں ہے. حالانکہ ٹیمپٹیشنز تھی کہ کوئی علیمہ خان آ رہی ہے جی، بشرا بی بی آ رہی ہے جی، شاید باہر سے قاسم آ جائے، لوگ یہ بات کرتے تھے بیٹے قاسم آ جائے، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ کارڈ پلے کیا نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ کارڈ پلے نہ کرنے کا کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت دیکھیں آپ کہ ابھی 2024 کے الیکشنز میں ایسے لوگ ان کے ٹکٹ پر، ان کے نام پر الیکشن جیت گئے جو کبھی اسمبلی میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کھمبے والی مثال سچ ثابت ہوگی. میں کئی وکلا کے حوالے دوں گا، دیکھیں نا کھل کر، بیرسٹر گور صاحب، لطیف کھوسا، یہ افضل مروت، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو MNA بننے کبھی نہ جیت سکتے. ایسے ہی ہے، خان صاحب کے نام پہ جیتے. خان صاحب بالکل. تو عمر بھائی جواب میں آپ کا مجھے ملا نہیں. آفٹر خان صاحب who will be the caretaker of this party؟ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواب ہے، ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آفٹر خان صاحب، اللہ ان کو زندگی دے خان صاحب کو، لیکن خان صاحب اگر جیل میں رہتے ہیں تو ان کی جگہ کون آگے ان کو لیڈ کرے گا؟ دیکھیں یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک بات میں علی احمد سے امید رکھتے ہیں آپ؟ علی احمد خان جو ہیں وہ دیکھیں ایک اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. انہوں نے بیچاروں نے سائیڈ لی ہے تو دیکھ لیں ہم لوگ سارے ان کے خلاف ہو گئے. اصل میں پتہ کیا حسیب بھائی، ساؤتھ ایشیا کا ایک ایسا ایک فیکٹ ہے جو مجھے اور آپ کو پسند ہو نہ ہو لیکن فیکٹ ہے، وہ یہ کہ یہاں پر وراثتی سیاست اور مظلومیت کارڈ بہت زیادہ بکتا ہے. چاہے وہ انڈیا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو، اس پر کبھی ہم الگ کسی بات کریں گے ٹاپک پہ. تو یہاں پر لوگ بے نظیر کو دیکھ کر ووٹ دینے نہیں جاتے تھے. وہ بھٹو کی بیٹی، وہ بھٹو جس کو سزائے موت ہو گئی. بالکل. یہاں پر نواز شریف جولائی 2018 کے الیکشن میں جیل میں تھا
तो मेरे सामने लाहौर के कई लोग वोट डालने जा रहे थे और नवाज शरीफ जेल विच हम उसको जाकर वोट डालते जी जी जी। मजलूमियत बिकती है यहाँ पर, विरासती सिस्टम जो है वो चलता है। अब ये ऐसी चीजें जो साउथ एशिया के पॉलिटिकल डीएनए में है। ओके, इसका कोई हल नहीं फिलहाल। अच्छा उमर भाई, पीटीआई बार बार एहतजाज की कॉल दे रही है, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये एक मौसर तहरीक बन सकेगी? देखिए, पीटीआई ने अप्रैल 2022 के बाद ये बात साबित तो की है, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने मदद दी जी। अप्रैल 2022 के बाद से लेकर आप देख लीजिए एक साल तक, यानी 2023 तक, अप्रैल मई तक पीटीआई की पूरी पॉलिटिक्स एजिटेशन पे रही है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है। आप भी जानते हैं। नहीं उमर भाई, मैं नहीं जानता, ये आप ही कह रहे हैं, तो मैं आपको पता है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। नहीं सिर्फ इतने सादा आप नहीं है, हर कोई जानता है। अच्छा। इमरान खान अपने जलसे जुलूसों में खड़े होकर किसको क्या कह रहे होते थे, किसको मीर जाफर, किसको, वो एक बच्चे से भी हम पूछ सकते हैं। अगर आप इतने मासूम बनना चाह रहे हैं तो फिर हम बाहर जाके किसी बच्चे से पूछते हैं कि बेटा इमरान खान जलसों में किसको मीर जाफर कह रहे होते थे, वो बच्चा भी हमें बता देगा। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चल रहे थे, तो पीटीआई ने अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो क्रेडेंशियल होता है वो मनवाया है। ठीक है, पोस्ट 2022 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर इनके साथ 2-3 सियासी जमातें अलायंस कर लेती हैं तो फिर तो ये एक बहुत बड़ी मुल्कगीर तहरीक बन सकती है, अगर 2 या ज्यादा 3 जमातें भी और पीटीआई के साथ आ जाए। नहीं, जो केपीकी में होने जा रहा है, आपको ही पता है, पेशावर में उन्होंने तहरीक की मतलब कॉल दी हुई, आप समझते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज जिसका कोई मकसद होगा वो कर सकेंगे? देखिए, एक प्रेशर तो होगा क्योंकि अब केपीके में गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है और केपीके एक बड़ा अहम यूनिट है फेडरेशन का। बंदा भी गंडापुर और केपीके में पीटीआई की मकबूलियत बहुत वहां असीब भाई, हमारा ये इलेक्शन का टॉपिक नहीं, वरना वहां तो पुराने सियासतदान तीसरे नंबर पर आए हैं। जी। आफ्ताब शेरपाव तीसरे नंबर पर आए हैं। जी। ठीक है, अहमद अली खान कहीं नजर नहीं आए। मिस्टर गौर ने जिस तरह सीट जीती, खुद फजल रहमान को जिस तरह गंडापुर ने हराया, मानसेरा से नवाज शरीफ को हरा दिया आपने। जी। और आपको क्या चाहिए? नवाज शरीफ कभी कौमी असेंबली की सीट नहीं हारे। लीडर्स हारते हैं कौमी असेंबली की, एक आध सीटें भुट्टो हारे, बेनजीर पेशावर से हारी, भुट्टो डीआई खान से हारे, शहबाज शरीफ कराची से हारे, बिलावल हारते। नवाज शरीफ कौमी असेंबली की सीट कभी नहीं हारे, सूबाई के हारे। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आप देख लें कि मानसेरा से, केपीके से नवाज शरीफ अपनी सीट, अपने दामाद की सीट, भाई जहां से उनका दामाद और दामाद का भाई जीता रहा, बिल्कुल वो हार गया। लेकिन उमर भाई, यहाँ पे जाते जाते एक और सवाल है, जहां हर जगह फॉर्म 45 ने धूम मचाई है, वहां क्यों नहीं धूम मचा सका? अगर ये दोस्तों ने जो हमारे इलेक्शंस करवाते हैं जिनके ऊपर इल्जाम है एस्टेब्लिशमेंट, बहुत अच्छी बात आप, तो फिर वहां क्यों नहीं? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपसे, मुझे यही बहुत अच्छा दिलचस्प। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप कहेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं। अच्छा, मैं सही, लोगों को पता लग रहा है। देखिए, केपीके की पॉलिटिकल डायनामिक्स पंजाब और सिंध से बहुत मुख्तलिफ है। सी भाई, केपीके की हिस्ट्री मुख्तलिफ है। ठीक है, केपीके के अंदर उस पंजाब या सिंध की तरह थाना कचहरी नहीं है, वहां उस तरह ब्रदरिज्म नहीं है। ठीक है, उनकी उस तरीके की कॉलोनाइज हिस्ट्री नहीं है। केपीके जिस तरह ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं, जिन्होंने नेल्सन मंडेला से ज्यादा उम्र कैद काटी है, ज्यादा उम्र वो जेलों में रहे हैं, पहले अंग्रेज के खिलाफ, बाद में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। बिल्कुल, वो सूबा ऐसी तहरीकों का अमीन है। यानी क्या समझते हैं, वो ग्रूम्ड इतना है, वो ग्रूम क्योंकि कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ ना। ठीक है, कभी सूबे को उस तरीके से वो कंट्रोल, जागीरदारी निजाम, बरादरी निजाम, थाना कचहरी, वहां डायनामिक्स ही नहीं है। तो व्हाई नॉट पंजाब? देखिए, पंजाब ये तो फिर चूंकि कॉलोनाइज्ड रहा, पंजाब में जिस तरीके से हमलावर आते रहे, जिस तरीके से अंग्रेजों ने चलाया, फिर पाकिस्तान में जो 4 दफा मार्शल लॉज लगे, उन मार्शल लॉज में जिस तरीके से पंजाब की सपोर्ट ली गई, पंजाब के पॉलिटिशियंस को यहाँ उठाया गया, पंजाब की पॉलिटिकल एलीट पर अलायंस किया गया, चाहे अयूब खान हो, चाहे जनरल जिया हो, चाहे मुशर्रफ हो, पंजाब को जिस तरह यूज किया गया। आज भी यहाँ अंग्रेजों के दौर के पुलिस एक्ट चल रहे हैं, अंग्रेजों के दौर के डीसी सिस्टम चल रहे हैं, कमिश्नरी सिस्टम चल रहे हैं, मजिस्ट्रेटी निजाम चल रहे हैं। तो पंजाब तो इस हवाले से जो है वो चूंकि पोलिटिकली आप कह लें ग्रूम नहीं है, जिस हद तक केपीके में बात कर। वाह, थैंक यू वेरी मच उमर भाई, सो नाइस ऑफ यू। दोस्तों, ये था आज का शो। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि उमर जावेद साहब का एक अपना चैनल है, रीथिंक विद उमर जावेद, उसको सब्सक्राइब, उसको लाइक, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।